Saloni, lovely to speak to you. So I'll be very honest. It was not Najma Api that was my introduction to you. It was actually Kangana Ranaut. So you made me laugh. I think you do a better Kangana than Kangana herself. Oh, I don't think so. I mean, obviously, she speaks better for herself. But how, I mean, I'll start with that. How did you decide to take off on her? How did you like pick on her? I mean, I was in school, and the first proper movie I ever watched in a theater was Tanu Ed's Manu Returns. So that's when I, thought that I can mimic her. So I started it in school, and in college also I started mimicking her, and everybody used to love it. So that's when I thought that even I can, try and post something about it on Instagram. So I used to do audio videos only. I mean, the video used to be black and there was just my voice, and everybody used to say that it sounds just like Kangna. Then I thought I should buy a wig, which is completely not how Kangna's hair looks. I know. but that's the funny part. So I bought that and I started doing proper videos and everybody started loving them. So has she like responded to you? No, never. She has recently joined Twitter. I mean, she was not personally on any social media platforms earlier. So I don't know if she has seen them or not. What would you like to say in Kangana's voice? I can say anything. You tell me what do you want me to say? क्या बोलना है? आजकल के न्यूज़ हेडलाइंस के लिए आप क्या बोलोगे? What's your take? आजकल के न्यूज़ मीडिया के बारे में क्या बोलोगे यार? अब वो रियल कंगना तो कुछ और ही बोलेंगी, बट अगर मैं बोलूं तो आजकल तो न्यूज में एंटरटेनमेंट के लिए देखती हूँ. फिल्में तो आ नहीं रही हैं थिएटर में, तो मैं तो न्यूज देख के ही एंटरटेन हो जाती हूँ. इतनी फनी न्यूज आती है ना आजकल. बहुत ज्यादा. Well, it's interesting. This lockdown has been great for you because everybody has been wanting to go through your Insta profile, and Saloni God, I mean there are many faces of Saloni God. आपके तो इतने वो है ना. I actually wrote about the number of people you are. So there is पड़ोस वाली आंटी भी हैं, नजमा आपी भी हैं, कंगना रन आउट भी हैं. So who's actually the alter ego अपना character that you feel closest to amongst these three people that I have named? I think पड़ोस वाली आंटी, because वो मेरे ही पड़ोस की एक आंटी है. तो मतलब जो वॉइस मैं यूज करती हूँ वो एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट है उनकी वॉइस से, because I wanted the character to be something different from the other characters which I have made. So I gave that voice to that character, and but वही है ना कि वो साथ में ही एक ऐसी आंटी रहती है मेरे घर के जिनको हर घर की खबर रखनी होती है, कौन कहाँ जा रहा है. अगर आप शॉपिंग से भी आ रहे हो तो उनको पूछना होता है कि क्या लेकर आए हो. तो वो वाली आंटी. तो आई बिलीव वो कैरेक्टर काफी क्लोज है. वो आंटी ने देख लिया वैसे अपने आप को? नहीं, वो आंटी एक्चुअली काफी बूढ़ी है, तो वो सोशल मीडिया पर नहीं है. I just love it. So it's interesting. Your IG profile says, still can't believe that my parents allowed me to follow my passion without getting an MBA degree. What was it that you realized this is what I want to do? I mean, I wanted to do this from the start. When I was in school, I always wanted to be a stand-up comedian. I remember my brother once, made me saw Zakir Khan's video. And I was so thrilled to watch it कि उस stage पर खड़े होके कितना अच्छा feel होता होगा इतने सारे लोगों के सामने perform करना है, and everybody is laughing on whatever you are saying. So I always wanted to do that, but I knew that I won't get this success overnight. So I have to put myself out for the audience. I have to start posting something so that people get to know me. And I mean, I was living in a hostel when I was a graduation student. So मुझे ऐसा लगता था कि club वगैरह का scene तो perform करने का रात में ही होता है. And I used to have curfew timings, so I never got the chance to perform at any club. But I used to perform at College Fest, and I used to enjoy performing for everybody. I mean, मुझे इतना मजा आता था स्टेज पर जाकर. तो मुझे ये था कि I want to be a stand-up comedian, but at the same time I knew कि मुझे वो वाला struggle नहीं करना है कि खाने के पैसे नहीं है और financially parents पर depend करना पड़ रहा है. तो मैंने सोचा था कि I'll take a job किसी भी बैंक में, which I don't think कि मुझे मिल जाती, पता नहीं. I started preparing for it, but I wasn't confident enough that I would crack that exam in the first attempt. But I always thought that I'll have a day job and then at night I'll go to perform at these clubs. तो मैंने पता नहीं इतनी फिल्में देख ली है ना कि
वो इसे भी ड्रामेटाइज कर लिया था कि हाँ सुबह सुबह काम पर जाया करेंगे और रात में क्लब में परफॉर्म करेंगे, तो दैट वुड बी माय लाइफ। बट हाँ फॉर्चुनेटली सही टाइम पर सब कुछ सही से हुआ तो। तो ये नज़्मा आपी कैसे आई? हाउ डिड शी कम? मतलब पड़ोस वाली आंटी का तो मुझे पता चल गया वो कैसे, हाउ शी केम इनटू कैरेक्टर। नज़्मा आपी कहाँ से, कहाँ मिली आप नज़्मा आपी से? See, every character which I have ever created is somehow inspired from someone. I mean, not in particular, but like for Nazma Api, I'm from Bulandshahr. It's in Western UP. जी, जी। So the dialect which I use is widely spoken there. But I used to think that it is only a Bulandshahr thing. If I make a video using this dialect, people won't understand it. They would say कि ये क्या बोल रही है, ऐसे कौन बात करता है, ऐसे तो कोई भी बात नहीं करता है. But when I moved to Delhi for college, I visited Old Delhi and I got to know that this is a proper dialect and everybody speaks like that. And such a beautiful dialect ना, तो इतने प्यारे प्यारे words होते हैं. So I catched a few keywords at first and then I in 2018 I decided to make a video around Eid and everybody loved it. और उसके बाद से तो नज़्मा आपी सबकी फेवरेट हो गई. सही में अब नज़्मा आपी क्या कहेंगी लॉकडाउन और पोल्यूशन के बारे में? एक्चुअली जो पहली वीडियो नज़्मा आपी की वायरल हुई थी वो इसी टाइम पर हुई थी. वो दिल्ली पोल्यूशन के ऊपर ही थी और उसमें नज़्मा आपी ने ये कहा था कि ये वो टीवी पे कैटरीना कैफ आती है, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, हमें तो आ नहीं रही है, मेरे बच्चे रोने लगते हैं, अम्मी हमें सांस नहीं आ रही, हमें सांस नहीं आ रही. तो मैंने तो उनको बोल दिया बेटा नाक में रुई ठूस लो, गंदा सांस लेने से तो अच्छा है सांस ही मत लो. You know, this is exactly how my makeup person, उनका नाम फरहाद था, वो ऐसे बात करते थे. This was his लहजा. ये बहुत प्यारा लगता है मुझे. मतलब जब मैंने कैरेक्टर किया था तो काफी लोगों के मैसेज भी आए थे कि अब ये कैरेक्टर ना वही एक कैरेक्टर सॉरी डायलेक्ट ये अब जाता जा रहा है. मतलब लोग ज्यादा बातें नहीं करते इसमें, तो इट्स सो गुड दैट यू हैव यूज दिस Absolutely एंड कम फॉरवर्ड विद दिस. true. So, what is uncommon sense for you? I mean, सलोनी को क्या uncommon sense लगती है लोगों में? आपका शो तो है uncommon sense. इंडिया में तो सब सब अनकॉमन ही है ना. मतलब हमने जब इस शो का नाम सोचा था तो हम काफी मतलब ये दिस वाज नॉट आवर फर्स्ट चॉइस और ये पहली बार में हमारे दिमाग में नहीं आया था. जी. वी वर थिंकिंग फॉर अदर ऑप्शंस बट देन वी हाँ. थॉट दैट आवर शो इट फोकसेस ऑन मिडिल क्लास एंड हाउ मिडिल क्लास पीपल बिहेव. एंड हमारा जो इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो मिडिल क्लास ही है. जी. तो हमने सोचा था कि इंडिया में एवरीबॉडी यूजेस अनकॉमन सेंस. आई मीन नोबडी यूजेस कॉमन सेंस. सब अलग ही सोचते हैं यहाँ पर. तो हमने सोचा था कि अगर हम इंडिया के लिए मिडिल क्लास शो ऐसा कुछ बना रहे तो उसका नाम तो अनकॉमन सेंस से रिलेटेड ही कुछ होगा, तो ये नाम रखा था. तो कैसा लग रहा है? 2 प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम में तो आप हैं ही एक रेज, नाउ you've got this OTT platform to perform on. How has that been for you? रियली गुड. आई मीन आई एम सो एक्साइटेड. पहली बार ऐसे मतलब पहले तो दूसरों के ही शो देखते थे, अभी खुद का शो ना विच आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ. आई मीन मैंने कभी सोचा भी नहीं था. जब ये कॉल हुई थी सोनी के साथ तो वी एक्चुअली गॉट अ मेल फ्रॉम देयर साइड एंड मुझे लगा था कि शायद अपने किसी शो को प्रमोट कराने के लिए कुछ मेल आया होगा कि तो, क्योंकि आई वाज डूइंग कंगना रनौत रिव्यूज उस टाइम पर. मैं कंगना रनौत से कुछ भी रिव्यू करा देती तो आई थॉट कुछ वैसा होगा. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे खुद का शो मिल जाएगा. And now when I've got it, I mean, it's just like a dream come true. So I'm always intrigued, where do you get your ideas from? कितने न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, कितने चैनल्स वॉच करते हो, क्या-क्या ऑब्जर्व करते हो? It can be tedious because I watched the first episode. It's so relevant, and I was just laughing and laughing for those 18 minutes. So where do you get your ideas, and where do you pick it up from? See, the episode is written by someone else. I mean, I'm not the part of the writing team. But for my videos, I have this habit of reading newspapers daily from the childhood. I mean, my father always wanted two things from us: to have a healthy breakfast before you go to school and read the newspaper. और हमारे आजकल स्कूल में जनरेशन ना नहीं पढ़ती है, आपको पता है न्यूज़पेपर्स? हाँ स्नैपचैट मतलब पे जो बस मिल जाए न्यूज़ वही है, और इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जो मिल जाए. हाँ तो ट्विटर भी मतलब मुझे ट्विटर पर मजा आता है. वो वैसे लोग बोलते हैं ना कि ट्विटर बहुत टॉक्सिक हो गया, ये हो गया. बट वहाँ ये भी है कि सबकी अलग ही कुछ ना कुछ न्यूज चल रही थी तो वो भी एक सोर्स है मेरी न्यूज का. बाकी तो जब एक तो हम हमेशा न्यूज़पेपर की हैबिट इसलिए भी रही क्योंकि स्कूल में ना हमारा एक वो होता था इन द मॉर्निंग असेंबली वी यूज्ड टू हैव अ जीके क्विज टाइप ऑफ थिंग. आई मीन करंट अफेयर्स. वो उसी दिन के न्यूज़पेपर से कुछ ना कुछ चीजें पूछी जाती थी.
कि आज की हेडलाइन क्या है, ऐसा क्या है, तो वो थोड़ा एक्साइटमेंट रहता था। मतलब पता नहीं हम क्यों इतने कम्पिटिटिव थे, लेकिन हमें था कि हमें ही जीत कर आना है उसमें। तो हम लोग पढ़कर जाते थे और फिर वो हैबिट कंटिन्यू रही कॉलेज में भी और अभी भी। मतलब I like to keep myself updated. I mean, I was also a student of political science. Like 3 months back, I was giving my final graduation Wow, exams. So we used to discuss all these things in college with our professors. तो मतलब वो interest तो शुरू से ही था. awesome. Who's that one comic you actually want to share stage with? Who you would love to? अनुभव सिंह, बस्सी एंड जाकिर खान। आई मीन, बट मुझे बहुत डर लगेगा। आई मीन वो लोग बहुत, तो मैं बहुत ज्यादा ही मतलब सही है ना, तो मैंने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया है। अरे यार, आप तो रेज बन गई हैं। Who knows? Next show will just be with them. क्या पता? नहीं मतलब, लेकिन मुझे स्टैंड अप कॉमेडी उतने अच्छे से नहीं आती ना। आई वांट टू स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच। मुझे अच्छे से एक बार सीखना है। ये तो जितना मैंने किया है, मतलब मैं कॉलेज फेस्ट वगैरह में करती थी, बट वहां तो वो मेरी एज की ही ऑडियंस होती थी कि कोई थर्ड ईयर का बच्चा है, कोई सेकेंड ईयर का है। मैंने कभी भी अपने से बड़ी ऑडियंस के लिए परफॉर्म नहीं किया है। जी, तो वो एक थोड़ा वो चीज होती है ना, आपका कंटेंट फिर उनके लिए भी होना चाहिए, जी, जो कि आज तक मेरा कंटेंट नहीं था। मतलब जब मैंने स्टैंड अप परफॉर्म किया, तो जी। मुझे वो थोड़ा स्टैंड अप वाली आर्ट सीखनी है उसके बाद। So the lockdown has been really great for you. आपको uncommon sense मिल गई है. But as an artist, जितना trolls और criticism भी बहुत है social media में, आप इतने young भी हो. How do you manage it? Yeah? And what would you want to tell people who want to create content? Because आजकल सबके पास phone है, laptop है, सब कुछ ना कुछ डाल रहे हैं. What have you decided, realized what works and how to handle पड़ोस वाली आंटी की तरह आप तरह ट्रोल्स और क्रिटिक्स जो इतना बुलिंग करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज दोगी? पड़ोस वाली आंटी का तो यही है कि भैया मुझे तो आसपास की बड़ी फिक्र रहती है, मेरे को नहीं पता मतलब कि कौन मुझे क्या लिख रहा है। मेरे को तो जो अपना काम है, मेरे को तो वो करना ही है। तो मेरा भी वही है कि अगर वो लोग अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कुछ भी, तो ठीक है ना, हम भी, हमें भी बोलने का फिर हक है, तो हम भी बोलते ही हैं। बाकी आई थिंक मैं तो अब इतना लाइटली लेने लग गई हूँ इस सब चीज को कि मुझे अब हंसी आती है पढ़कर। हाँ, समटाइम्स देयर कमेंट्स आर सो क्रिएटिव कि तुमने जो बोला है उसका मतलब अब हम तुम्हें बताएंगे। ये रहता है ना हर सबसे जगह। क्रेजी कमेंट क्या आया वैसे आपको? पता नहीं ऐसे याद नहीं है। मतलब आते रहते हैं ना, तो ऐसा तो कोई याद नहीं है, लेकिन मतलब हो जाता है कभी कभी, कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव लिख देते हैं, तो मैं तो पिन भी कर देती हूँ कभी कभी कि नहीं, तुमने बहुत दिमाग लगाया है, तो डिजर्व Awesome. करते हो। तो और कभी कभी अगर मुझे लगता है कि मेरा रिप्लाई उनके रिप्लाई से विटी होगा, तो मैं कर देती हूँ उनको रिप्लाई कभी कभी। और कभी मुझे लगता है नहीं यार, यही जीत जाएगा, तो मैं रहने देती हूँ। Uh, so how, what advice would you tell people how to be creative? Because बहुत stress लगता है, ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले. एग्जैक्टली। आई मीन, जब मैंने भी स्टार्ट किया था, तो मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि सब कर रहे थे। मतलब अब तो यही है ना कि जब स्टार्टिंग में यूट्यूब पर यूट्यूबर्स ने आना स्टार्ट किया था, कुछ लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, तब वहां पर सिर्फ कुछ लोग थे जो कंटेंट बनाते थे, बाकी सब कंज्यूमर्स थे। जी, अब क्या है कि सब कंटेंट कंज्यूम भी करते हैं और सब कंटेंट बना भी रहे हैं यूट्यूब जी, के लिए। जी, और सेम विद इंस्टाग्राम। आई मीन, सबने ही शुरू कर दिया है, बट आई थिंक पेशेंस इज द की। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यही सोच रहे हो ना कि आपको इसी यही करना है, तो एक तो इसलिए मत करो कि बाकी सब कर रहे हैं। डू इट बिकॉज यू डू इट डिफरेंटली। आप दूसरों से कुछ अलग कर रहे हो, क्योंकि एक भीड़ में सब कुछ एक जैसा करेंगे तो किसी एक का ही चल पाएगा, या फिर किसी का भी नहीं चलेगा। जी, तो या तो आपका कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तब आप करो, या फिर आप फुल कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई, हम लॉन्ग टर्म में हमें यही जाना है और हम मेहनत कर लेंगे। थोड़े टाइम तक सक्सेस नहीं भी मिल रहा है तो भी चलेगा। जी, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता है कि अगर, देखिए मेरा सही टाइम पर हुआ सब कुछ, वही कि मैं ग्रेजुएशन स्टूडेंट थी तभी मेरे वीडियोस वायरल हो गए। वरना मुझे भी थोड़ा तो स्ट्रेस हुआ होता कि जॉब भी लेनी है, ये भी करना है। हाँ, अगर आपके पास फुल सपोर्ट है तो आप करो, और पेशेंस रखना पड़ेगा बस। absolutely. जाते जाते ये बताओ, who's that one person who actually you feel is would be a favorite person for people to mimic? ऐसा कौन सा है जो easy है and who's tough? मतलब कैसे? Like one person you think is very easy to mimic that people love ओके। mimicking, and one person you think would be very tough to get that person's accent and characteristic right. आई मीन, अमिताभ बच्चन सर काफी इजी है, सब कर लेते हैं, ऐसा मैंने देखा है। वो आप करते हो? हाँ मतलब, ऑब्वियसली मैं लड़की हूँ तो मेरी आवाज उतने अच्छे से नहीं निकल पाती है, बट हाँ, वो हाई वाई वाला तो सब कर ही लेते हैं ना अब। वो वो हर घर में सब कर रहे होते हैं। और टफेस्ट तो
पता नहीं, आई मीन किसी का स्पेसिफिक एक्सेंट होता है तो वही टफ होता है, मुझे वैसे तो नहीं मालूम। जैसे मैं भी सोनम कपूर की अगर मिमिक्री करती हूँ तो मेरे लिए वो इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि एक वो उनकी इंग्लिश का एक्सेंट भी अलग है। इफ आई एम स्पीकिंग समथिंग इन इंग्लिश लाइक राइट नाउ, सो आवर इंग्लिश इज लाइक दिस ओनली, बट How would, हर इंग्लिश इज जैसे बताओ? her English is like, hi, hello everyone. So this is something different. I mean, her English accent is totally different from what others speak in India. तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक आई रिमेम्बर व्हेन आई फर्स्ट मेड अ वीडियो ऑफ सोनम डूइंग सोनम कपूर्स impersonation, आई टुक 3 अटेम्प्ट्स। आई मीन पहली दूसरी बार में तो लग ही नहीं रहा था दैट इट्स सोनम। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट मेरे लिए तो वो रहता है। बाकी तो मालूम नहीं कि लोगों को सबसे ज्यादा टफ क्या होगा, बट हाँ इजी में तो आई थिंक अमिताभ बच्चन सर। तो सोनम जाते जाते सोनम का एक impersonation कर दो। हेलो एवरीवन। मैं ना एक्चुअली मुझे सोनम के में एक्चुअली टफ रहता है, तो मैं सोनम का जो एक लाइन मुझे अच्छे से आती है मैं वही बोल देती हूँ। जी। जो उनका लॉरियल का एड था, हेलो एवरीवन दिस इज सोनम कपूर, लॉरियल पेरिस का फॉरवर्ड पैच 3x क्योंकि हमें नाज है खुद पर। Awesome. आपने अनन्या पांडे का भी किया है, what's that also? हाँ अनन्या, एक्चुअली इट्स समवॉट सेम। आई मीन दोनों का ही थोड़ा थोड़ा South ऐसा ही है Bombay कि accent as this. हाँ या हेलो। अनन्या का थोड़ा एक्चुअली सोनम थोड़ा स्लो बोलती है, अनन्या का थोड़ा पिच वैसे फास्ट है कि हेलो दिस इज अनन्या पांडे एंड आई एम टुडे इंटरव्यू गिविंग माय इंटरव्यू, आई एम रियली एक्साइटेड। सो अनन्या का थोड़ा पिच फास्ट है, बस इतना है, Wow. बाकी सेम सेम सही है। Amazingly talented. Thank you so much.